तो अगर कोई एग्जाम में 5% 6% बच्चे अगर पास हो रहे हैं, ऐसा एक्सेप्शनल रिजल्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट फिर सब कुछ छोड़ के और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड फोकस कर लेता है. What, according to you, would be the right time to quit a thing? Everyone who's watching this video, Sakshi is a CS. Obviously, recently she's completed a professional examination, and apart from being a great professional, she makes wonderful finance-related videos. Hi everyone, this is Sakshi Charadia and I welcome you all to a very special episode. The reason for my big smile, I think सबको thumbnail देख के पता चल ही गया होगा. Today's Teachers Day and I have had the opportunity to be in conversation with my personal favorite mentor, who is also one of the reasons that I could add the prefix CS to my name. He is an incredible human and has been inspiring the entire professional fraternity. And it is an absolute honor for me to welcome CS Shubham Sukleja sir to my channel and request him to answer a few questions for us. So sir, my first question to you would be, you have inspired and motivated so many people, so many students. What is the factor that keeps you positive and energetic all the time? Like what drives the positive energy in you? Hello Sakshi, I hope you're doing great. I hope you're doing wonderful. And with respect to your question, what keeps me motivated? So first of all though, whenever I talk to any student or I'm making any video, so the intention is never to motivate a student. The intention is to actually communicate the correct thing at the correct age. बच्चों को बहुत लेट समझ में आता है उनके करंट समय की कीमत, तो दैट्स द एंटायर पर्पस. बट हाँ, कभी अगर कुछ पुश की जरूरत होती है और अगर वो वीडियो या फिर जो मैंने बात की वो अगर एक मोटिवेशन की तरह काम कर जाती है, तो आई एम रियली ब्लेस्ड दैट वे, आई वुड से. Next, coming on to the question that what keeps me motivated now, so I'll tell you very frankly to everyone who's going to see it later on. अगर कभी भी हम जीवन में कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं which is purpose driven, तो you will always be self motivated. आप हमेशा motivated रहेंगे. So currently I teach, then I've got a law firm, then I run a separate project, education for everyone. All of them are purpose driven. They've got a purpose that कुछ तो बहुत जबरदस्त change आना चाहिए उसके बाद में. So if there is anything which is purpose driven, तो आई गेस वो चीज बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है. यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड, यू आर ऑलवेज एंड ऑलवेज मोटिवेटेड. So rest all assured, everything has to be purpose driven in life. Nice. So moving on, my second question for you would be, like it's a very competitive world out there and professional courses like CA, CS और CMA वो अपने students की academic development पे ज़्यादा focus करते हैं rather than the practical ones like a B school does for MBA students. So what all things you would suggest to a student of professional course, like what all things he or she can do to make him stand out in this competitive market? Before answering the second question, I would want to tell everyone who's watching this video, Sakshi is a CS. Obviously, recently she's completed a professional examination, and apart from being a great professional, she makes wonderful finance-related videos. So everyone who's watching this video, a sincere request कि जाओ and just check it out once, and you're going to love it. Okay? So do check it out once. Now coming on to your second question, that what additional things a professional student should do to stand out. तो यार सबसे पहले तो ये एक प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ये एक प्रॉब्लम है कि जो भी बच्चे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होते हैं उन बच्चों में थोड़ा सा ओवरऑल ग्रूमिंग की कमी होती है. उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है द एक्सट्रीम प्रेशर एंड द टाइप ऑफ रिजल्ट्स इंस्टीट्यूट गिव्स. अभी का रिजल्ट आया था CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 का, मैं देख ही रहा था 5.8% रिजल्ट्स. तो अगर कोई एग्जाम में 5% 6% बच्चे अगर पास हो रहे हैं, ऐसा एक्सेप्शनल रिजल्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट फिर सब कुछ छोड़ के और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड फोकस कर लेता है. तो ये एक परेशानी जरूर है. बट इसी कारण से इन सब कोर्सेज के अंदर देयर इज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप होती है, एंड इंटर्नशिप स्टूडेंट को मौका देती है कि अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दे. तो सबसे पहली चीज तो उसने जो आर्टिकलशिप का पीरियड होता है उसको बहुत प्रोडक्टिवली यूज करना है, एंड वहां पे उसका पूरा फोकस होना चाहिए अपना ग्रूमिंग. वहाँ पे यू टू वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स एज वेल एज यू टू वर्क ऐसा ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आप कैसे बात करते हैं से लेके यू शुड रीड न्यूज़पेपर्स एंड यू शुड बी एज एन अपडेटेड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज गोइंग अराउंड. ये सब चीजें फुल फ्लेजेड आपको ग्रूमिंग पे ध्यान देना है ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप. बट सर क्या इसका मतलब है कि जब तक हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तब हम ग्रूमिंग पे ध्यान ही ना दें? ऑब्वियसली नॉट. मैं बस ये बता रहा हूँ कि आप चिंता मत करिए, वो आर्टिकलशिप के टेन्योर पे आप लोग बहुत जबरदस्त अपना ध्यान दे सकते हैं ग्रूमिंग के ऊपर. अब आता है सर पढ़ाई के साथ में हमें क्या करना चाहिए. पढ़ाई के साथ में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट अ स्टूडेंट कि वो बहुत कुछ करे, बट बेसिक 3 चीज़ें तो एक स्टूडेंट ने कोशिश करनी चाहिए. 1, रीडिंग न्यूज़पेपर अनिवार्य रूप से पढ़ना है. और मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो भी व्यक्ति अभी मुझे सुन रहा है ना, आप न्यूज़पेपर लगा तो लो. आपको लगता है आप नहीं पढ़ोगे, फिर भी लगा लो. यू पे दैट 200-250 रुपीज एवरी मंथ एंड यू गेट न्यूज़पेपर डेली. वंस यू स्टार्ट गेटिंग न्यूज़पेपर एट योर होम ना, तो आज नहीं तो कल, हफ्ते में 1 बार, फिर हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 3 बार आप यू स्टार्ट रीडिंग इट अप. बट स्टेप 1 से शुरू करो, दैट स्टार्ट सब्सक्राइबिंग टू अ न्यूज़पेपर एटलीस्ट.
न्यूज़पेपर रीडिंग विल रियली हेल्प यू, और जो आपका कनेक्टेड रिलेटेड चीज़ है इकोनॉमिक टाइम्स एंड एवरीथिंग, दैट विल सर्टनली हेल्प यू एज अ लॉन्ग वे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, पब्लिक स्पीकिंग। जहाँ भी आपको मौका मिलता है, आपके क्लासेस के दौरान, आपके ओरिएंटेशन के दौरान, आपके ईडीपी के दौरान, जहाँ भी आपको मौका मिलता है, ट्राई एंड डेवलप योर पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग ऐसी चीज़ है जो एक दिन में डेवलप ही नहीं हो सकती। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब आप करेंगे, एवरी टाइम इट गेट्स बेटर। और आखिरी चीज़, जब जहाँ जो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ करने का मौका मिलता है, डू दैट एंड डोंट यू वरी टू मच। देखो यार, कैसा है, पढ़ाई तो हमें करनी है, एग्जामिनेशन पास तो हमें करना ही है, बट जहाँ बीच में आपको थोड़ा मौका मिल जाता है, देयर इज एन एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, देयर इज अ डिबेट, देयर इज सम मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, एनीथिंग, एनी मौका दैट यू गेट, गो एंड गेट इट। And these 3 things you should follow even when you're studying. Right. Articleship and training does play a very important role in the professional development of a student. And of course, the other things that you said, उस पे भी focus करके a student can grow professionally and get an edge over others. So moving on, sir, like there's a saying that too much emphasis on one thing is never a good idea. In that context, अभी CS के results out हुए थे and there are so many students who are unable to clear their exams. So what according to you would be the right time to quit a thing? So Sakshi, this is one question which does not have a definite answer only. मतलब even a teacher like me cannot answer this question that what is the time that you should decide to skip a course or leave a course. देखो कैसा है, but मैं ये ज़रूर जानता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से about courses, about teaching and about life, that 3 कारणों से तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। आपका एज आपको लग रहा है कि रीज़न है, आपके अटेम्प्ट बहुत लग चुके हैं, या फिर आपके मार्क्स बहुत कम आए लास्ट अटेम्प्ट में। ये 3 क्राइटेरिया तो कतई नहीं होनी चाहिए। आई एम माई सेल्फ अ पर्सन हु हैड क्लियर्ड हिज 10th at 59% and was able to do CA, CS, LLB, everything parallelly, and at the age of 21 I was done with everything. So what I have realized from my own life and my thousands of students I have seen, कि ये ना कि एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। कोई भी व्यक्ति हु इज डेडिकेटेड एंड हु इज देयर, मतलब वो लगा हुआ है, वो रुकने को तैयार नहीं है, हु हैज दैट पेशेंस, परसेवरेंस एज वेल, वो व्यक्ति 100% निकाल देगा। तो इन 3 कारणों से छोड़ने के लिए मैंने क्या था, बट हाँ, आई नो वेरियस पीपल हु हैड लेफ्ट अ कोर्स एंड आर डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट ऑफ माइन लॉन्ग बैक लेफ्ट हिज कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स एंड इज मैनेजिंग बंगलॉज, Airbnb टाइप्स में, एंड ही इज डूइंग वंडरफुल। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, और वैसे ही मेरे पास हजारों एग्जाम्पल्स हैं हु हैव क्लियर्ड द प्रोफेशनल कोर्सेज एंड आर डूइंग वंडरफुल। सो व्हाट आई बिलीव इज कि अगर आप क्रिएटिव हैं और अगर आप मेहनती है ना, तो आप जीवन में कुछ बहुत तूफान करने ही वाले हो। सो स्टिक टू इट, डू इट नाइसली। बट अगर आपको अंदर से कॉलिंग आ रही है एंड कोई और चीज़ आपको लगता है कि मैं वो बेहतर करूंगा, तो यू कैन डू दैट। माई एल्डर ब्रदर, ही वॉज परसुइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी व्हेन आई वाज इन माई 12th, एंड देन उन्हीं को देखा था मैंने, देयर आफ्टर स्टार्टेड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह। उसकी बड़ी सी स्टोरी है, नटशेल में बस ये बताता हूँ। ही लेफ्ट हिज CA इवेंचुअली, he is not a chartered accountant today, he left his CA later on, मतलब उन्होंने इंटर वगैरह सब क्लियर्ड है, आर्टिकलशिप डन है, फाइनल्स का एग्जामिनेशन उन्हें कुछ समय दिया, एंड thereafter he left it up. But then he's doing great today. He was working at Mercedes अभी, he's about to complete his MBA and he's going to do great अभी, he's doing wonderful. And ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे who are able to complete the course and are doing wonderful. तो आप जीवन में बहुत अच्छा करोगे, ये बात तय है, अगर आप मेहनती हैं, अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप लगे हुए अपने लक्ष्य को लेकर। लेकिन कोई कोर्स छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, ये बहुत पर्सनल डिसीजन रहेगा। ये इस बिना पे मत लीजिए कि आपके अटेम्प्ट लग चुके हैं, फिर मार्क्स बहुत कम है। हाँ, अगर आपको कॉलिंग आ रही, यू थिंक नहीं है मुझे MBA ही करना है, मुझे लॉ ही प्रैक्टिस करना है, मुझे गिटार ही बजाना है, मुझे मेरा बिजनेस ही ओपन करना है, और किसी एक चीज़ की आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है, दैट इज समथिंग यू वांट टू डू, देन यू कैन लीव एनी कोर्स और एनीवेयर यू आर एंड रन एंड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। बिकॉज जीवन एक ही है यार, और जैसे कहते हैं ना, प्यार एक ही बार होता है, वैसा तो मैं नहीं कह रहा कुछ, लेकिन ये बात तय है जीवन के अंदर कि एक जीवन है, तो जो भी करने की इच्छा है वो इसी जीवन में आपको करना होगा, राइट। तो अगर दिल में कुछ भी करने की एक क्लियर वाइब आती है कि यही मुझे करना है, देन जहां भी हो, डोंट स्टे स्टक अप, रन एंड अचीव व्हाटएवर यू वांट टू। Thank you so much, sir, for this insightful conversation. We learned so much from you, and for taking out the time, especially. I know how busy your schedule is, and I will forever be grateful to you, for you have been an incredible and a very big part of my CS professional journey. I hope we can have more such conversations in the future, and just keep inspiring and motivating the entire CS community. We all need you. Thank you so much again, and see you all again in the next video.